Hello, welcome everyone to this channel of videos on the series of videos. I am Suraj Prakash Singh, working as an assistant professor, School of Management Sciences, Varanasi. I have previously, in the previous series of videos, I have already told that I am going to talk about varieties of concepts relating to finance. And in this previous sessions, we have started the sum of the banking concepts and the banking financial services concepts. In two previous classes, we have covered up what is introduction to banking and functions of commercial bank. Today, I am going to discuss a very important, a very vital topic, which is called credit creation. It is nothing but credit creation. I am going to talk about this one. This is very much important because एक संस्थान बैंक अपने आप ही पैसे नहीं बना लेती है. How they multiply money, they make money with a single amount of money, with a single पैसे, वो कैसे उस चीज़ को डबल, ट्रिपल, 100 गुना, 4 गुना, 500 गुना कैसे करती है. We will discuss this one in the video. First of all, let me clear this. Before going into the concept and mechanism of credit creation, we have to anyhow know some of the important vital points which is required. First of all, when somebody deposits money in the bank, definitely he is always in a consent that whenever he requires money, they can be gettable from the bank. माने जब भी आप पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो आपको ये आशा रहती है कि जब बैंक मांगे, जब हम बैंक को मांगे, तब वो हमें मिल जाएगा. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग का डेफिनेशन यही होता है. It's repayable on demand. Whenever you demand the money, they have to pay you anyhow, right? So I can say that bank ऐसा तो नहीं है कि एक ही साथ 100 अकाउंट होल्डर है और एक ही बार 100 जन आ जाएं और बोले कि हमें पैसे चाहिए. Then at that point of time, the bank will be in a problematic situation. क्योंकि वो एक साथ लोगों को पैसे पेमेंट कैसे करेगी. उसके वजह से, उसके चलते we have already talked about RBI. RBI, the apex body of the banks, have given a mandatory measures for the banks to keep some reserves in the time of exigencies. That reserves comes under the part of what you say, when we are making monetary policy, the banks makes monetary policy. There is a concept of statutory liquidity reserves, cash reserve ratio. So ये होता क्या है? कुछ नहीं, सीधा सा हिसाब किताब है कि बैंक को कहा जाता है आप कोई भी टाइम पर कोई ना कोई जितने भी आपके सेविंग्स हैं या जितने भी डिपॉजिट्स एक दिन में होते हैं उसका कुछ पार्ट, दैट सर्टेन परसेंटेज विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई. दैट पार्ट इज टू बी केप्ट विद द बैंक एवरी डे. एवरी डे आई एम टेलिंग यू, दे हैव टू कीप दैट अमाउंट विद देम because it's a policy, it's the procedure directed by the RBI to them. So वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो, कोई भी परसेंटेज हो, वो RBI ही डिसाइड करेगी कि आपको कितने पैसे हर दिन में आपको अपने पास सेफ के तौर पर रखना है. फॉर एग्जाम्पल, PNB has got a transaction of 1 lakh for a day and the statutory or the cash reserve policy of keeping a certain reserve is 10%. Then PNB at any point of time has to keep 1 lakh का 10%, 10,000 रुपये उसे अपने बैंक में हमेशा रखने ही है, भले वो 90,000 को डिसबर्स कर दे. Got it? Now, this important concept, this is credit creation itself provides you the meaning, the credit and creation. We all know creation means to multiply, which means to develop, which means to add up things, right? And when we are talking about credit, it's nothing but involvement in money. अगर कोई ना कोई तरीके से पैसे बढ़ते हैं तब बात आती है क्रेडिट क्रिएशन. सो व्हेन वी आर कंबाइनिंग दीज टू थिंग्स, इट्स नथिंग बट क्रिएटिंग मनी with a smaller amount of money into a bigger one, or multiplying the money day by day with some sorts of mechanism. That mechanism will be taught to you in this example. तो इन चीज़ों को बोला जाएगा कि credit creation क्या होता है. So it is the mechanism in which the money supply of a country, of an economy or monetary reason is increased mostly in the form of bank deposits. जितने ज़्यादा deposits उतने ज़्यादा
क्रेडिट आप सप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आप ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे. सेम थिंग हैपेंस विद द बैंक. If you have got more and more deposits, the bank has more and more deposits, the more he will provide or lend the money to the needy or to the people who need that money. So आपको कभी भी ध्यान होगा कि आप जब भी अकाउंट में आपके पैसे चढ़ते हैं, so that आपके मैसेज आता है your account has been credited, means what? Your money gets मनी गेट्स गोज इन अ पॉजिटिव वे, मतलब वो बढ़ गया. और जब भी डेबिट का मैसेज आता है तो वो कोई ना कोई तरीके से कट जाता है. तो यहाँ डेबिट क्रेडिट से आपको पता चल सकता है कि क्रिएशन कैसे. अगर क्रेडिट मैसेज आता है तो जाहिर सी बात है आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी पैसे बढ़ रहे हैं. डेबिट होता है पैसे कट रहे हैं. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता चल गई. क्रेडिट क्रिएशन क्या हो? इट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मनी फ्रॉम अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिवॉल्विंग इन द इकोनॉमी इटसेल्फ. यहां पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या किया जाता है? एक लिक्विडिटी पर्पस को देखा जाता है. लिक्विडिटी, बाय लिक्विडिटी वी मीन इज द एबिलिटी ऑफ द कंसर्न टू पे ऑफ इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. जाहिर सी बात है एक उधारधारक मेरे पास आया, उसको मुझे पैसे देने हैं, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू पे दैट मनी टू दैट, तो वो मेरा किस काम का? अगर वो बैंक मुझे पैसे ना दे और मैं उसे पेमेंट ना कर सकूं, देन द बैंक्स डिपॉजिट्स आर ऑफ नो यूज. So for maintaining that liquidity purpose, credit creation is required. Second, cash reserve ratio is to be kept at any point of time. It is being directed by the RBI. ये दो चीजों का ध्यान रखते हुए हम क्रेडिट क्रिएट करते हैं. So अभी हम एक छोटे से I am all the time I am talking about the base things. If you have got a base, I will not take a exemplified example, but एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं इसके बेस और मैकेनिज्म को क्लियर आउट कर देगा कि क्या करते हैं और कैसे प्रोसीजर होता है. क्योंकि अगर क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, देन वी डोंट हैव एनी फंड्स एंड वी कैन नॉट मेट अप द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स और द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉयल कस्टमर्स हु आर बीन देयर फॉर अस फॉर एवरी टाइम. सो एक छोटे से एग्जाम्पल से आप ध्यान रखिएगा. कुछ एजम्पशंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पूरे इकोनॉमी में मात्र 1000 रुपए हैं. पूरे इकोनॉमी में मात्र 1000 रुपए हैं और वो 1000 रुपए मिस्टर ए के पास है. 1000 रुपए मिस्टर ए के पास है. कुछ हाइपोथेटिकल है बट सेंसिबल है. आप सोच के देखिए कि मिस्टर ए के पास पूरे इकोनॉमी में मिस्टर ए के पास ही टोटल इकोनॉमी का पैसा जो है मिस्टर ए के पास है वो कितना है? 1000 रुपए. और बैंक की पॉलिसी है कि हमेशा वो 10% कैश रिजर्व रेशियो रखेगा, यानी कुछ भी रिजर्व्स रखेगा उसका परसेंटेज कितना है? 10%. कहने का मतलब मिस्टर ए के पास 1000 रुपए हैं, राइट? नाउ आफ्टर डिडक्टिंग दैट 10%, after deducting that 10% we got 100. ये 1000 रुपए के ये मिस्टर ए है, ये 1000 रुपए वो कहां डिपॉजिट किया? बैंक में. अब बैंक क्या करेगी? उस 10,000 रुपए से 10% रिजर्व काटेगी बिकॉज इट्स द मैंडेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI, एंड दैट 900 आफ्टर डिडक्टिंग 100 फ्रॉम अराउंड 1000 देयर इज 900. ये 900 को अब बैंक डिसबर्स करेगी इन द फॉर्म ऑफ लोन. पिक्चर में आते हैं मिस्टर बी. मान लो मिस्टर बी को लोन की जरूरत है. नाउ दिस 900 विल बी मिस्टर बी का एक अकाउंट होगा बैंक में, राइट? मिस्टर बी एक पिक्चर में आते हैं जिनका अकाउंट है. अब बैंक क्या करती है? ये 900 इन द फॉर्म ऑफ लोन मिस्टर बी को दे देती है. तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी लोन बैंक प्रोवाइड करती है वो बैंक के लिए एसेट होता है, और जब भी बैंक के ऊपर हमारा पैसा रहता है वो हमारा लायबिलिटी होता है. तो मिस्टर ए के पास 1000 रुपए था, उन्होंने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए. जब डिपॉजिट किए तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं डिपॉजिट फ्रॉम ए 1000 एज अ लायबिलिटी इज शोन. वो बैंक क्या करती है? 10% कैश इन हैंड रख लेती है. कैश रिजर्व रखने के बाद बचता कितना है? 900, राइट? नाउ दिस 900 इज
गिवन एज अ लोन टू मिस्टर बी। मैंने जैसे ही कहा कि लोन जब दिया जाता है वो एक एसेट है, तो एसेट के तौर पर मिस्टर बी को सबसे पहले 900 रुपए मिल जाते हैं। सबसे पहले 900 रुपए मिल जाते हैं। नाउ मिस्टर बी बैंक मिलने के बाद 900 रुपए मिलने के बाद अब ये क्या करती है, बैंक मिस्टर बी जाता है मिस्टर सी को, राइट। मिस्टर सी के पास क्यों जाता है, क्योंकि उसे प्रोडक्ट्स खरीदने रहेंगे या कुछ खरीदना रहेगा फॉर स्पेंडिंग पर्पस। राइट नाउ मिस्टर बी इज गोइंग टू सी फॉर मेकिंग पेमेंट्स। सो मिस्टर बी इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी एंड मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 900 टू हिम। क्लियर। ए के पास पैसे था 1000 रुपए, बैंक में डिपॉजिट किए, 10% काटा, 900 के बाद मिस्टर बी को 900 मिले, 900 से वो गया मिस्टर सी को पेमेंट किया। मिस्टर सी पेमेंट करने के बाद अब मिस्टर सी क्या किया, वो पैसे जाके डिपॉजिट कर दिया बैंक में। क्लियर। अब ये जब बैंक में डिपॉजिट किया तो ये फिर एक लायबिलिटी हुआ, यानी ये 900 यहां पर आ गए, डिपॉजिट फ्रॉम ए तो था ही। क्लियर। ये जो 900 आ गए ये बैंक में जब ऐड हो गया तो जाहिर सी बात है इस 900 का 10% काटने के बाद फिर बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। क्लियर। सो दिस 900 इज अगेन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड द बैंक प्रोवाइड एडिशनल लोन टू मिस्टर बी आफ्टर डिडक्टिंग 10%। सो 900 का 10% 90 रुपए काटने के बाद 810 रुपए वो लोन फिर से बी को प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब बी की जो लोन कितने हो गई, 1710 रुपए, दैट मीन्स 1710। सो आई कैन एज्यूम दैट मोर मनी मोर स्पेंडिंग। क्लियर। नाउ दिस 1710 विल अलाउ द मिस्टर बी टू have more transaction with Mr. D। जाहिर सी बात है, मतलब ये 810 रुपए जब मिल रहा है तो वो जा रहा है मिस्टर डी को पेमेंट कर रहा है और एडिशनल सर्विसेज ले रहा है। फिर मिस्टर डी क्या कर रहा है, पैसे को यहां डिपॉजिट कर दे रहा है, कितने, 810 रुपए। क्लियर। 810 रुपए फिर डिपॉजिट कर रहा है तो फिर बैंक का बैलेंस बढ़ गया, यानी फिर बैंक का बैलेंस 810 रुपए से बढ़ गया। अब ये 810 रुपए से फिर 10% काट के बैंक प्रोवाइड करेगी लोन, यानी 729 फिर लोन प्रोवाइड कर सकती है। दिस इज द बैकबोन, दिस इज द फेज। इससे पता चलता है कि मात्र सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी में कितने रुपए थे, 1000 रुपए, लेकिन बैंक बना कितना चुका है उसको, 2710 रुपए। अब बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं, जब बैंक में डिपॉजिट हुआ था, ए ने डिपॉजिट किया था तो वो बने कितने थे, 1000 रुपए। 1000 रुपए से लोन प्रोवाइड किया गया, पहले 900 रुपए, फिर 810 रुपए। दिस इज द बाइफर्केशन, फर्स्ट 900 देन 800 देन 810 रुपए, ये बन जाते हैं 1710, प्लस फिर जो डी डिपॉजिट किया था उसके लिए एडिशनल लोन जो मिला था वो 729, ये बन के कितने होते हैं, 2439। दैट मीन्स 2439 is the loan which is the asset for the bank, whereas cash in hand we can have इसका bifurcation 100 रुपए, फिर 90 रुपए, फिर 81, which gives equal to 271। सो इनका बैलेंस शीट का टोटल कितना आता है, 2710 रुपए। अब लोन के तौर पर डिपॉजिट ए किया, पहले 1000 रुपए बैंक में आ गया, फिर सी यहां से 900 रुपए डिपॉजिट किया, फिर डी ये जो 810 रुपए एडिशनल लोन जो मिले हैं वो जाके यहां पर डिपॉजिट किया। सो स्टार्टिंग में पैसे कितने थे, मात्र और मात्र 1000 रुपए, बट अब पैसे कितने हैं, 2710 रुपए, और उनके पास कैश इन हैंड 271 ही है। दिस इज द टोटल मैकेनिज्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि कैसे एक छोटे से अमाउंट से बैंक कैसे बढ़ाती है। ये तो मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लिया हूं, ऐसे कितने कस्टमर्स होंगे और कितने पैसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ये एक बेसिक एग्जांपल है। इफ एनीबॉडी इज बीइंग एबल टू डू दिस, दे कैन
know what is the functions behind or what is the base behind the credit creation. Clear? Now it faces some of the limitations, because while providing credit or providing loans to the people, we won't, हमें पता नहीं रहता कि वो सामने वाला हमें डिफॉल्ट करेगा, पेमेंट देगा कि नहीं देगा. So these are some of the hindrances of creating the credit. But the most important merit of this credit creation is that the banks can face any of the exigencies, any of the emergencies which arises out of the customers, and they can provide each and every benefit to them. So I can have a gist of a summarized version of limitations of credit creation, that the capacity of the banks to create credit. हर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स व्हाट यू से फेनोमेनल, नॉर्मल फेनोमेनन होता है कि वी बिलीव इन दैट बैंक्स विच इज़ इन नेम, जिनका नाम ज़्यादा रहता है उनसे हम, क्योंकि हम लोन भी प्रोवाइड लेने जाते हैं तो सोचते हैं कि शायद हम SBI से मिल जाए, शायद PNB से मिल जाता तो अच्छा है. लेकिन किसी को कहा जाए कि आप देना बैंक से लोन लीजिए, किसी को कहा जाए कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से जाइए, सो वो कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे. सो बिकॉज द बैंक्स डोंट हैव द एक्चुअल एबिलिटी एज कंपैरिजन टू डिफरेंट बैंक्स, उनका एबिलिटी हर किसी का समान नहीं होता है क्रेडिट क्रिएट करने को. द विलिंगनेस ऑफ द बैंक्स, कई बार बैंक्स ऐसे होते हैं कि वो क्रेडिट क्रिएशन करना ही नहीं चाहते, मतलब क्रेडिट देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका मैक्सिमम डिफॉल्ट पास्ट में हुआ रहता है. सो अगर क्रेडिट हिस्ट्री खराब रहे तब वो बैंक प्रोवाइड, वो चाहती ही नहीं कि हम बैंक प्रोवाइड, हम लोन प्रोवाइड करें. द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. अब ऐसा तो नहीं है कि हम जाके किसी को भी लोन दे दें, डिमांड भी तो होना चाहिए, राइट. सो अगर डिमांड भी है लोन का, तभी जाके लोन हम प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट हम प्रोवाइड करेंगे. Then the factors which determine credit worthiness, credit borrowers background check, ये सब एक तरह से hindrances बनेंगे credit creation के. But on the whole I can say that if we are going for a credit creation, the banks always if you are focusing on the credit creation, the banks will always try to provide more and more loans, more and more investments to the people who need this one, and multiply their money itself, and thereby getting some profit from that one. Clear? So this is the whole picture about this credit creation. Hope you all have understand this, and no doubt you have to apply these things in your own and see what you have got in this one. Thanks a lot. Stay tuned for more videos. Thanks a lot. Have a good day to everyone.